So once again, note down, we'll start sums right now. So everyone take out this PDF, hurry up. Take out this PDF, trigonometric functions. Okay, I'll resend the PDF in the group. Please take out this PDF and we'll start questions from this PDF now. So now I'm going to solve few questions during the class, and then I'll give you all to try few questions. Okay, I'll give you few questions in the class to try. So everyone try to see the first question. Yeah, the first question of the day is number 1. Now you find that in question number A, all the questions are similar to what you have done in class 10. मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये रिवीजन पार्ट में दी है. नंबर ए के अंदर जितना भी क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लास 10 में किया. सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए का नंबर 1 से. सी यू हैव टू प्रूव दैट sin theta whole to the power 4 plus sin square theta into cos square theta is equal to how much? 1. Sorry, is equal to sin square theta. So let us take one side. Okay, let us take one of the side. Let's take left hand side. We will always try to take that expression which is in more complex form. We will always try to take that expression which is in more complex form. Like here we are finding that left hand side is in more complex form, right hand side is in reduced form. So we'll try to take left hand side. So here we have sin theta whole to the power 4 plus sin square theta into cos square theta. And we have to show that it is equal to sin square theta. So note down everything. Suppose we have x to the power 4 plus x square into y square. So tell me everyone, what common do you find in both these terms? Can you tell me? X square. X square. So if I take x square common from both these terms, what is remaining here? X square plus What y is remaining square. here? It is y square. So देखो एक बार ध्यान से, एकदम सेम सिचुएशन है यहाँ पे देखो sin थीटा होल टू द पावर 4 है, यहाँ पे sin थीटा होल स्क्वायर है, यहाँ पे cos थीटा होल स्क्वायर है. तो इन दोनों में से अपने लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? We can take sin square theta common. So if I take sin square theta common, what is left? You will find that here we have sin square theta left. All right, everyone. Plus, if I take sin square theta common, what is left here in this term? It is cos square theta. Now, students, tell me, what is sin square theta plus cos square theta? 1. 1. So this becomes 1. So what is the answer? Sin square theta into 1, which is equal to sin square theta. This is what we have on the right hand side. Hence proved. All right. So this was very easy sir. Actually ये सारे चीज तुम लोग क्लास 10 में किए, फिर भी मैंने एक सम बता दिया खुद से. अब एक बार सबको खुद से ट्राई करना. मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, सम नंबर ए का you all have to do right now. Sum number 3, then 5, 7, then number 10, and finally question number 11. Start these questions again. I'll give you time to solve all the every question like one by one, and please don't rush. Don't think that others are solving, I'm not able to do so. You relax, take your time, and start solving the first question, that is number 3. Start. First, copy this up. Note down everyone. So the question is number 3. I mean, the first question is number 3. So I'm taking left hand side, okay? So on the left hand side we have 1 plus cos theta minus sin square theta divided by sin theta into 1 plus cos theta, and we have to show that it is equal to cot theta. ठीक है, मुझे क्या शो करना है? That it is equal to cot theta. So everyone note down. सबसे पहले चीज cot theta. Now tell me everyone, cot theta is equal to how much? It is equal to cos theta divided by sin theta. So everyone try to find out whether you have sin theta there in the denominator or not. Yes, we have sin theta. Do you have cos theta common in the numerator? No. But I can get this cos theta common. कैसे? See, I have cos theta here. I can reduce these two terms. कैसे reduce कर सकते हैं? देखना है.
I can write this as 1 minus sine square theta in the bracket plus cos theta. And you all know that 1 minus sine square theta can be reduced and written as how much? Tell me. What is 1 minus sine square theta? Last day मैंने बताया था कि sine Cos square square. theta, yes, sine square theta plus cos square theta is 1. So what is 1 minus sine square theta? It is equal to cos square theta. Next. Now what common do you have in both these terms? ये term में और इसमें common क्या है? We have cos theta common. What is left? It is cos theta plus 1. In the denominator we have sin theta into in the bracket 1 plus cos theta. Everyone tell me what I need in the proof part. I need cos theta in the numerator and I need in the denominator sin theta. So in the numerator I have cos theta, in the denominator I have sin theta. ठीक है? अब तुम ध्यान से देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, सेम है. So what is cos theta by sin theta? It is equal to cot theta. This is equal to RHS and square. So I am saying that take your time, prove. If you are not able to do, definitely I will help you. Don't worry. Now try question number 5 first. So see question number 5. So I am taking left hand side first, and left hand side is tan A plus cot A. Left hand side is tan A plus cot A का whole square, and the right hand side is sec square A plus cos x square. Okay, the right hand side is sec square A plus cos x square. So everyone note down. See कैसे लाना है, ध्यान दो. देखो बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा कि यहाँ पे सबको साइन, और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. सब लोग ऐसे सोच रहा होगा कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर किया जाए. प्लीज नोट डाउन, इट इज वेरी सिंपल. If you just concentrate properly, if you think properly, it is very simple. Just note down, everyone. सबसे सर इसको पहले a प्लस बी होल स्क्वायर में डालने से हो जाएगा ना? और सर आप एक बार साइन और कॉस की उसमें भी दिखा सकते हो. ठीक है, मैं उससे भी करके दिखाऊंगा. ठीक है. See, apply a plus b whole square का formula, which is a square. So what is tan a का whole square? Tan a का whole square is tan square a plus b square, that is cot square a plus 2ab that is 2 tan a into cot a. Alright everyone, ध्यान से देखना. यहाँ पे मैंने क्या किया, a plus b whole square का formula अप्लाई करते हैं, which is a square plus b square plus 2ab. Alright, अब देखो ध्यान से. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे प्रूफ पार्ट का. See, in the proof part I need sec square a plus cos x square. I need sec square a plus cos x square. तो ध्यान रखिएगा. एक बात बताओ, क्या मैं tan square a को sec के टर्म्स में लिख सकता हूँ? Definitely. कैसे? As we know that sec square theta minus tan square theta is 1 and cos x square theta minus cot square theta is also equal to 1. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखना है. इसमें हम tan square a को मैं लिख दूंगा sec के टर्म्स में. तो कोई बता सकता है कि tan square a, note down everyone, tan square a will be equal to how much in terms of sec? Tan square will be equal to how much in terms of sec? Square a minus 1. Sec It will be square a equal to minus. sec square a minus 1. Note down. देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, sec square a minus 1. All right everyone, tan square a की जगह पे. And cot square a को क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार. We can write cot square a as cos x square a minus 1. We can write this as cos x square a minus 1. अब देखो आगे ध्यान से, ये चीज हम रिड्यूस कर सकते हैं ये वाले पार्ट को, क्योंकि हमको पता है कि tan a और cot a दूसरे का क्या बताओ एक बार, रेसिप्रोकल है. मतलब हम cot a को 1 by tan a लिख सकते हैं, या फिर tan a को 1 by cot a, कैंसिल हो जाएगा. तो tan a into cot a कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया. So 1 into 2 becomes how much? 2. Then we have sec square a minus 1 plus cos x square a minus 1 plus 2.
Everyone note down. Minus 1 becomes how much? -2 and -2 plus 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो गया sec square a plus cos x square a -2 plus 2 -1 is -2, तो -2 plus 2 कैंसिल हो गया and the answer is sec square a plus cos x square which is equal to RHS. So don't you find that this method is, I mean, more better than the one if you convert in terms of sin and cos? See, I will express in terms of sin and cos and I'll solve this, don't worry. But this one is better. Why? Because इसमें बहुत easily हो गया, देखा जाए a plus b whole square का फॉर्मूला लगा के tan square a को हम लोग easily sec में कन्वर्ट कर सकते हैं और cot square a को भी हम लोग easily cos x square में कन्वर्ट कर सकते हैं and then बस सिंपलीफाई कर। एक बार ये वाला मेथड कॉपी करना, मैं sin cos में कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूं। So the alternative is, so I am taking reference side, which is tan a plus cot a का whole square, and we have to show that it is equal to tan square sec square a plus cos x square. So note down it. सबसे पहले सबको sin cos में कन्वर्ट कर देना, so I can write tan a as sin a by cos a, and I can write cot a as cos a by sin a. All right, let's take LCM. तो LCM लेंगे तो क्या होगा, sin a into sin a becomes sin square a, and cos a into cos a becomes cos square a. Now what is sin square a plus cos square a? It is equal to 1. ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर, ध्यान देना एक बार, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और cos a into sin a का होल स्क्वायर क्या होगा cos square a into sin square a. Have you understood everyone? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और cos a into sin a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos square a into sin square. ऑलराइट एवरीवन, अब ध्यान से देखो, बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि इसको कैसे हम लोग ला देंगे, इसको सॉल्व करके कैसे आ जाएगा sec square a plus cos x square, ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि इसको सॉल्व करके कैसे आ जाएगा। सी एवरीवन नोट डाउन, मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से एक बार देखना सब। एक बात बताओ, न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे 1, क्या मैं 1 के जगह पे sin square a plus cos square a लिख सकता हूं? Can I write at the place of 1 sin square a plus cos square a? Everyone tell me. Yes sir. You know that 1 के जगह पे हम sin square a plus cos square a लिख सकते हैं because sin square theta plus cos square theta is equal to how much? 1. अब देखो ध्यान से, इस फ्रैक्शन को हम लोग डिनोमिनेटर से, इस फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेटर से स्प्लिट करेंगे, कैसे? I can write this as sin square a by sin square a into cos square a, number 1, cos square a by sin square a into cos square a. ऑलराइट एवरीवन, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, sin square a कैंसिल हो गया, देखो sin square a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 by cos square a, और यहाँ पे cos square a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 by sin square a. ऑलराइट एवरीवन, now what is 1 by cos square a can be written as, tell me, 1 by cos square a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? sec theta, Sec square a. sec square a, and 1 by sin square a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos Cosec square a. So this is equal to RHS. So this is alternative. Please note down. You know that sin theta is equal to 1 by cosec theta. So cosec theta will be equal to how much? 1 by sin theta. So cosec squared theta will be how much? 1 by sin squared theta. So this is what I have. 1 by cos square a is sec square a, and 1 by sin square a is cosec square a. See, the only thing which you will have to do is, अगर तुम्हारे क्लास 10 का सपोज अगर मान लो बेसिक्स वीक भी है, तो मैं जैसे जैसे जो चीज करा रहा हूं, सी यू हैव टू टेक योर कॉपी एंड सिट एट होम. If you're not sitting with your copies at home and if you're not able to revise the things which I am doing in the class, you will not be able to clear your concept, और तुम्हारा वही का वही रह जाएगा, जो भी क्लास 10 में तुम्हारा जो भी बेसिक कंसेप्ट था, जो भी वीक पॉइंट था, वही का वही रह जाएगा. So everyone, I'll tell you, जो भी मैं करा रहा हूं क्लासेस में,
इसको उसी दिन जा करके घर पे और बेसिक चीजों को समझो, जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दे रहा हूँ। यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग, यू कैन एक बार वापस उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, जो पॉइंट में डाउट है उस पॉइंट को लिख लो और नेक्स्ट से वापस से क्लियर कर लो। So please make sure that you will follow the instructions very carefully. Copy down fast. Now we'll do number 7. सर Now next question number 7 now. So 7 number 7 देखना एक बार. I'm taking left hand side, okay? So left hand side is sin theta whole to the power 6 plus cos theta whole to the power 6, and we have to show that it is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta. Note down. सबसे पहला चीज sin theta whole to the power 6. हमारे पास ये चीज है, हमारे पास दो ऑप्शन, देखो इसको हमारे पास दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का। एक ऑप्शन ये है, पहले मैं ये बता दूं, x to the power n whole to the power n लिखो या फिर x to the power n whole to the power n लिखो, दोनों का मतलब x to the power mn ही होता है, ठीक है। दैट इज x to the power 6 अगर है तो तुम इसको x स्क्वायर का होल क्यूब लिखो या फिर x क्यूब का होल स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब सेम है, बिकॉज दोनों केस में पावर मल्टीप्लाई होकर 6 ही बन जाएगा, ठीक है। दोनों केस में पावर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 6 ही बन जाएगा, एक ही बात। अब एक बात ध्यान देना, मैं इसको sin थीटा, इसको मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, बिकॉज पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। ये जो स्क्वायर, ये जो 6 दिख रहा है ना, ये sin थीटा का पूरा पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे इसको लिखेंगे। देखो दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा ना कि क्यों नहीं इस तरह से, डेफिनेटली यू आर करेक्ट और कोई गलत नहीं है यहाँ पे। अगर हम ऐसा लिखें तो गलती नहीं है, हम इस लाइन को ये नहीं बोल सकते कि मैंने गलत लिखा है, कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ पे भी 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 2 3 जा 6, ये भी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है, मतलब तुम ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। बट व्हाई वी आर अवॉइडिंग दिस, लिसन हियर। अगर हम ये लिख रहे हैं मतलब हम यहाँ पे, मेरे दिमाग में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, जो कि हमारे पास दो ऑप्शन है, पता है दोनों में से कोई ऑप्शन काम नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों। अगर हम यहाँ पे साइन क्यूब थीटा को x मान लें, कॉस क्यूब थीटा को y, और मैं ये फॉर्मूला ही लगा के देखूं एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन, अगर मैं sin क्यूब थीटा को x, cos क्यूब थीटा को y मान लूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक बात बताओ, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा रिड्यूस होता है? नहीं होता, एकदम नहीं होता। चलो आई अवॉइड दिस, मैं इसको एकदम अवॉइड करूंगा, इस फॉर्म में लिख के, गलत नहीं है लाइन, लेकिन इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर ये सॉल्व क्यों हो पाएगा देखना एक बार, क्योंकि हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब का दो फॉर्मूला है, एक है x प्लस y होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरा है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों में से भी मैं पहला वाला फॉर्मूला को ऑप्शन में लेके चल रहा हूं, मतलब पहला वाला फॉर्मूला को मैं मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब पहला वाला फॉर्मूला मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है। क्यों बेटर लग रहा है मैं बस दिखा रहा हूं, बता एक बार लिख के बता दूं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, टेल मी। x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला दो है, पहले ये अप्लाई करके देखो। एक फॉर्मूला है x, ठीक है, sin क्यूब स्क्वायर थीटा x हो गया, प्लस y का होल क्यूब, दिख रहा है ना, x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, ठीक है, एक होते। अब ये वाला क्यों मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? 1 1 तो ये 1 हो गया, 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी 1। तो ये एक देखो कितना यूज हुआ स्टेप्स, 1 2 और तीसरा में तो आंसर ही दिख रहा है which is equal to RHS। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा था RHS में 1 चाहिए, तो क्लियरली अगर हम x प्लस y का होल क्यूब लगा दें, माइनस बीच में चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए x into y और x प्लस y। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो एक मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा 2-3 स्टेप्स में हमारा आंसर। लेकिन अगर बहुत लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर किया है, मैंने देखा अभी मुझे सॉल्यूशन भी भेजा है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं बता सकता हूं, अदरवाइज अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो ये स्टेप, ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है। इसमें थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, बट ये मेथड ज्यादा बेटर, बट ये गलत नहीं है, ये भी एकदम बढ़िया मेथड है। ओके, सो एक बार कॉपी कर लो फटाफट। अब नोट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10। So in question number 10, if I take LHS and if I want to show that it is equal to 1 plus sin theta by cos theta, just everyone just keep patience and put down whatever. So we need 1 plus sin theta by cos theta. See, बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा कि क्यों ना हम लोग इस सम को हम लोग सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद रैशनलाइज करके और बहुत लंबा करके ये सम को सॉल्व करें। पता है वो सम्स अगर उस तरीके से तुम लोग करोगे, तुम लोग अपनी कॉपी में देखना, इफ यू आर ट्राइंग दैट वे, ऑलमोस्ट तुम्हारे जो बड़ा वाला कॉपी है ना, बड़ा वाला कॉपी, उसका कम से कम 2 पेज लग जाए। और हम इस सम को बहुत आसान से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। व्हाट इज दैट? लिसन वेरी केयरफुली। So please avoid expressing in terms of sin and cos and then solving the sum, rationalizing then solving the sum. Please just note down कैसे करें। देखो सबसे पहले 1 plus sin theta by cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? Can I write this as 1 by cos theta plus sin theta by cos theta? Now what is 1 by cos theta is equal to? 1 by cos theta is equal to sec theta. Sec theta. And this is tan theta. मतलब हम लोग को ओवरऑल sec theta plus tan theta लाना है। ओवरऑल क्या करना है? sec theta plus tan theta लाना है हमको। ये सोचो तुम, ये आ गया मतलब हमको ये मिल जाए और ये मिलने का मतलब ये मिल जाए। ठीक है, हम लोग ऐसे सोचो। अब ध्यान रखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, इस 1 के जगह पे देखो, न्यूमरेटर में 1 के जगह पे, डिनोमिनेटर के 1 नहीं, न्यूमरेटर में 1 के जगह पे हमारे पास 1 को रिप्लेस करने का 3 ऑप्शन है। 1 को रिप्लेस करने का 3 ऑप्शन क्या क्या है? एक ऑप्शन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। एक है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। एक होता है cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, वो भी 1। आउट ऑफ these 3 options I am going to choose the second one because यहाँ पे सब कुछ sin cos sec tan में, यहाँ पे सब कुछ sec और tan में है, तो हम सेकंड वाला चूज करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। मतलब मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, कि न्यूमरेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाए। तो देखो इसके लिए क्या है, क्लास 10 में ये बहुत कॉमन सम है, एनसीईआरटी में ये सम था, ये वाला सम। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a plus b A plus a minus A b minus It is a minus b into a plus b you say, or a plus b into a minus b, से कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether you have done class 10 from CBSE or IIT, this was very common sir. Now you have got two expressions, two terms and two. बता सकते तुम लोग इसमें और इसमें कॉमन क्या है? बीच में माइनस है, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? tan theta plus sec theta tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन दिख रहा है, तो इसको मैंने कॉमन लेके ब्रैकेट में रख दिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जब मैंने कॉमन ले लिया तो फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पूरा कॉमन चला गया तो 1 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देना। इसमें से मैंने ये कॉमन ले लिया तो बचेगा sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा।
ये 1 है, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब एक बार ध्यान से देखना कि न्यूमरेटर में जो 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा है, क्या डिनोमिनेटर में ये और ये पार्ट और ये पार्ट सेम है या नहीं? चेक करते। 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा and 1 minus sec theta plus tan theta. Don't you think that both is same? देखो तो एक बार चेक करो। यस सर। Yes, sir. ये पार्ट और ये पार्ट सेम है कि नहीं? चेक करो। तो कैंसिल कर देते हैं। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, जो तुम लोगों को दिखेगा नहीं, मतलब अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये पार्ट में कैंसिल कर दे रहा हूं। सो व्हाट इज आंसर? इट इज tan theta plus sec theta. Now we can write tan theta as ये रहा है। अब हम tan theta को क्या लिखेंगे? sin theta by cos theta. And I'll write sec theta is 1 by cos theta. Take LCM. You'll get sin theta plus 1. So this is the expression you have on the right hand side. Let's prove it. Open on it. See, question number 11 is you are given the value of tan theta plus sin theta, which is equal to m, and the value of tan theta minus sin theta, which is equal to m. And we have to show that m square minus n square is equal to 4 times root m. देखो दोनों तरफ लेकर के सॉल्व करने वाला मेथड रॉन्ग नहीं है, बट मैंने क्या बोला उसको अवॉइड करने के लिए मैं तुम लोग को ये वाला सब दोनों तरीके से बताऊं। दोनों तरीका मतलब एक बार पूरा लेफ्ट से राइट सॉल्व करने वाला, एक बार दोनों तरफ सॉल्व करके सॉल्व करने वाला। तो ध्यान से देखना है। सो लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो वेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव m square minus n square. What is the formula of a square minus b square? It is a minus b into a plus b. All right. Now everyone tell me what will be m minus n. Let me find out here, okay? And directly put the value of m minus n. m minus n का मतलब हो गया tan theta plus sin theta minus tan theta minus sin theta. Put the bracket down. So what we are finding, tan theta gets cancelled. If tan theta gets cancelled, what is sin theta plus sin theta? It is 2 sin theta. And what will be m plus n? It will be tan theta plus sin theta plus tan theta minus sin theta. So can you tell me what will be m minus n plus n without thing? 2 tan theta. 2 tan theta. Because यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट जब हटेगा तो sin theta कैंसिल हो जाएगा and tan theta plus tan theta becomes how much? 2 tan. So we are finding that m minus n is 2 sin theta and m plus n is 2 tan theta. So here we have 4 sin theta into tan theta. तो ये हो गया एक मतलब साइड से हमने पूरा सिंपलीफाई कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। सर उधर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे ना, m square minus n square में। एक ही बात सर m square minus n square में सर डायरेक्ट m और n का वैल्यू एक ही बात है, डायरेक्ट 4ab आता। एक ही बात है, वही सेम ही चीज है। हम यहाँ पे उसको दिखा दिए, यहाँ पे तो वही चीज होती है, सेम थिंग। नाउ लेट अस टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड वी हैव 4 टाइम्स अंडर स्क्वायर रूट m. So we have m that is tan theta plus sin theta and n that is tan theta minus sin theta. Now what is a plus b into a minus b? It is a square minus b square. ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई किया। So we are finding that tan theta plus sin theta into tan theta minus sin theta is a square minus b का स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व होगा ध्यान देखो। मेरा कहना है और तुम लोग को ये बताया भी गया बहुत पहले कि अगर मान लो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, तो सबसे बेस्ट होता है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ज्यादा बेटर है कि नहीं? सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना ज्यादा बेटर होता है। जैसे ये वाला स्टेप के बाद ये लाना है
और हम लोग को पता नहीं चल रहा है क्या करना है, सो द बेस्ट थिंग इज एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ sin and cos. So we find that tan squared theta can be written as sin squared theta by cos squared theta, and sin squared theta तो ऑलरेडी है sin, ठीक है, वैसे छोड़ दो. अब बताना एक बार इन दोनों में कॉमन क्या है. इन दोनों में कॉमन है sin squared theta. अगर हम इन दोनों में से sin squared theta कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1 by cos squared theta -1. ऑलराइट, चेक करना इसमें से और इसमें से अगर हम sin squared theta कॉमन ले लें तो 1 by cos squared theta -1 बच जाएगा. ऑलराइट, कीप दिस एज इट इज. तो हम कर क्या रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम इसको सिंपलीफाई करके ये लाएंगे. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. सो वी हैव sin squared theta, फाइन. cos squared theta और 1 के एलसीएम क्या हो जाएगा, cos squared theta. ठीक है, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा cos squared theta. और बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का, ये 1 into 1 is 1, cos squared theta into 1 is cos squared theta. इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम. Now everyone tell me what is 1 minus cos squared theta. Tell me everyone. Sin Sin square square theta. theta. sin square theta. अब देखो बहुत लोग यहाँ देख के लग रहा होगा बहुत लोगों को कि sin square theta into sin square theta को sin theta whole to the power 4 लिख देते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, देखो sin theta into tan theta चाहिए. सो बताओ तो sin square theta by cos square theta क्या होता है, So tan square theta. Tan square theta. तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, आई विल राइट दिस एज sin square theta into tan square theta. Alright everyone, sin square theta by cos square theta is tan square theta. Now what is square root of this? Sin square theta into tan square theta का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट sin theta और tan square theta का स्क्वायर रूट क्या होगा, tan theta. Everyone copy down. So this is the method where what I did, I solved LHS जितना हो सकता है सिंपलीफाई किया, मैंने राइट हैंड साइड लिया जितना हो सकता है सिंपलीफाई किया और देखा दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब प्रूव. बट मैंने बोला इस मेथड को अवॉइड करने के लिए मैं बताता हूं कि कैसे डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस कैसे प्रूव हो जाएगा. देखना है, पहले इसको कॉपी करो, नोट डाउन द डायरेक्ट मेथड. सी नाउ व्हाट वी नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, लाना क्या है हम लोग को, लाना है 4, उसके बाद रूट के अंदर m और n का प्रोडक्ट, m का और n का प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट लाना है. ओके ऑलराइट, अब ध्यान से देखना है. क्या मैं सबसे पहले sin थीटा tan थीटा को क्या मैं स्क्वायर रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, चेक करने का. एवरीवन प्लीज नोट डाउन. क्या मैं इसको अगर मान लो x इनटू y है तो क्या मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज़ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, प्लीज आई वांट रिस्पांस, प्लीज डोंट स्पीक एवरीवन. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, x, एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर, It's y. इट इज y. Y. ठीक है, तो ठीक वैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी एवरीवन वन थिंग, क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को, सुनना एक बार, tan स्क्वायर थीटा को क्या मैं sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूं, चेक मार्क्स. Yes sir. नाउ Yes sir. यू नो दैट tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा -1. अब देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पे तुमको बहुत दूर का सोचना पड़ेगा. ये मतलब थोड़ा सा आई मीन कॉम्प्लिकेटेड है सोचने, ये तरीका सोचने का. नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सोच के कि मुझे चाहिए m into n. तो m into n का मतलब क्या होता है, tan थीटा प्लस sin थीटा into tan थीटा माइनस sin थीटा. और अगर हम देखें तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो देखो मिल गया कि नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो मिल गया. जस्ट चेक वंस, sin स्क्वायर थीटा आ गया, इसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करना एक बार, बिकॉज वी फाइंड दैट we have sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को 1 by cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं.
ठीक है, देखो sec square theta को 1 by cos square theta. Now what is sin square theta by cos square theta? Tan square theta मतलब ये हो गया tan square theta. And what is a square minus b square का formula? It is a minus b into a plus b. समझ में तुम लोग? देखो एक बार, sin square theta into sec square theta. Sec square theta is 1 by cos square theta, which is sin square theta by cos square theta, which is equal to tan square theta. ठीक है, a square minus b square का फॉर्मूला होता है a minus b into a plus b. Now tell me what is tan theta minus sin theta? n, and what is this? n. आ गया RHS? तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड. एक बार कॉपी करना सबको, एक बार ये कॉपी करो, ये मेथड भी, and then I'll see what next. आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, ये लास्ट सम है. और तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा सुनना एक बार. जो सम नंबर ए है, ए के अंदर जितना क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस को वापस से करके आना. Tomorrow in the next class, I don't think there will be much doubt. Maximum 2 डाउट होगा मुझे जो लगता है. इससे ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए. अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है. Don't think that मैं सॉल्व नहीं करूंगा. Definitely I'm going to solve, and then we will start from number B. अब B से टाइम नहीं लगेगा. B से बहुत स्मूथली हो जाएगा सारा चीज. So let me repeat everything once again. Students, please make sure that number 1, whatever thing is being done in the class, please after the class gets over, revise those things properly. Think every time that whatever was the level in class 10, you have to improve your level. How to do this? Follow the instructions carefully. That is, whatever is being taught in the class, after the class gets over, उस चीजों को बढ़िया से घर पे रिवाइज करो, बढ़िया से उसको कंसेप्ट को समझो घर में बैठ के, और होमवर्क को उसी दिन कंप्लीट करो. जब टाइम बच जाता है तो जो भी डाउट आता है उसको वापस से 2 बार 3 बार 4 बार उसको सॉल्व करो. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू इंप्रूव योरसेल्फ, एंड अपने जो कंसेप्ट, जो टॉपिक है मैथ्स, उस पर इंटरेस्ट लाने का यही तरीका है. सो हियर आई एंड टुडेज क्लास.